This is a conversation with my parents, Anil and Jyosan Lavani. In this special 30th episode, we celebrate 30 years of them being my parents by asking them all the questions I can only ask under the pretext of a YouTube show with a microphone in front of them. So, in this conversation, we discuss growing up in India in the 60s, leaving your homeland and then possibly returning to it, and also parenting two animals that society calls their sons. This is No Time. If you like what you see, then do hit subscribe on YouTube. Smash that button. Follow on Spotify or rate 5 stars on Apple Podcasts. This project continues to take a lot of my time, money, and effort down to our last pennies here. So if you'd like to see it continue, do consider making a donation on Patreon. Thank you to the people who continuously do so. For other forms of love and support, you can follow this channel on Instagram, Twitter, TikTok, Reddit, Reels, whatever new social media platform that comes up next, or Facebook copies, or you can follow me personally. And now, hi guys, Hrithik Roshan. Absolutely fantastic. You're listening to No Time. तो 1960s में आगरा उत्तर प्रदेश के एक मिडिल क्लास फैमिली में पहला लड़का पैदा हुआ. तुम्हारी 5 बड़ी बहनें थी, बट यू वर 6th इन लाइन, एंड देन तुम्हारे पास 2 और भाई आए. उस ज़माने में आई एज्यूम कि लड़कों को थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ा ज़्यादा काम तो करना ही पड़ता था. इफ़ आई टू डिस्क्राइब यू टुडे, you are someone who takes a lot of responsibility, often more than required, a lot of pressure, often more than required, but you get things done. You are the one person who anyone can go to who will solve all problems. You like to describe yourself as a task master, which is one of your favorite words. कभी कभी फीलिंग ये आती है कि तुम्हें टास्क करने में ज़्यादा मजा आता है rather than the final result. एक बार काम हो गया तो no interest. What is the next task? So my first question for you is, how much of your current personalities do you think is a direct influence of the fact that from a very young age you had to take a lot of responsibility when you were growing up? I think you are right. क्योंकि मैं घर में भाइयों में सबसे बड़ा था और घर का जो माहौल था वो एजुकेशन से ज़्यादा फोकस था. एंड मिडिल क्लास फैमिली में इसका मतलब डे टू डे चैलेंजेस. फॉर्चुनेटली हमें एज सच कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मनी वॉज लिमिटेड. सो वी हैड टू फोकस ऑन एजुकेशन and probably money also to be rationed on education part. So since very childhood, it was very clear I need to study hard. I need to get selected in some good. That time only engineering and medicine was the branch. No other education was considered like a professional education. So you need to get selected. There were no private colleges नहीं होते थे उस समय. उस समय ये कोई कंसेप्ट नहीं था कि आप डोनेशन दे के भी एडमिशन ले सकते हैं. लिमिटेड जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते थे उन्हीं में एडमिशन होता है. और एक जनरल आईआईटी रुड़की बहुत ही फेमस थे, सबके लिए प्रेस्टीज मानी जाती थी उसमें सिलेक्शन. तो प्रॉब्ली चाइल्डहुड से वो एक टारगेट मिल गया था कि ये पूरा करना है. एंड उस समय ऐसा कुछ एनवायरनमेंट नहीं था कि हॉबी एंड अदर डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स हैं उनके लिए कोई फोकस नहीं होता था. ओनली फोकस वाज ऑन पढ़ना खाना. यही 2 फोकस होते थे उस समय के. खाना ज़रूर उस समय के हिसाब से जो आजकल आप लोग सब लोग ऑर्गेनिक फूड की बात करते हैं, वो नेचुरली नॉर्मल वे में अवेलेबल होता था. तो अच्छा खाना और पढ़ना, तो शुरू से एक ये आ गया. फिर जो मेरे फादर थे वो, जैसा कि क्लियर है कि मिडिल क्लास फैमिली है तो लाइफ स्ट्रगल होती है. प्रॉब्ली मैंने उनको ज़्यादा स्ट्रगल करते देखा क्योंकि घर बड़ा था हमारा, 8 भाई बहन, एंड हमारे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर भी साथ में रहते थे. हालांकि उसका बेनिफिट भी बहुत था. एक्चुअली मेरी सारी एजुकेशन का जो सुपरविज़न है वो मेरे ग्रैंडफादर का है. मतलब उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है उसमें. लेकिन हमारा बड़ा घर था, विलेज से कनेक्टेड थे. सो फ्रीक्वेंटली विलेजर्स समवन और अदर बिना किसी अपॉइंटमेंट के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के सडनली आ जाते थे. तो घर में हमेशा एक्टिविटी बनी रहती थी और एक एक्सपेक्टेशन रहती थी. तो मुझे ये लगता था कि मुझे जल्दी से जल्दी फादर को सपोर्ट करना चाहिए. सो प्रॉब्ली ये हुआ कि जब मैंने इंजीनियरिंग कर ली, सडनली एक ट्विस्ट हुआ मेरे प्लान में कि पहले मैंने सोचा था कि अब पहले मास्टर्स करूँगा और उसके बाद जॉब में जाऊँगा. मैं इमीडिएटली जॉब में चला गया
ये सोचते हुए कि फादर को हेल्प हो जाएगी। एंड उसके बाद मेरे दोनों छोटे भाई भी मेरे साथ पढ़ रहे थे, तो उस समय एक यही ऑब्जेक्टिव था कि फादर को हेल्प की जाए। तो प्रॉब्ली उससे मेरी पर्सनैलिटी में आ गया कि जिम्मेदारी जल्दी से जल्दी लेना शुरू करें। एंड घर का बड़ा होने की लड़का होने की वजह से फादर ने भी शायद कुछ जिम्मेदारी देनी शुरू कर दी थी। You touched upon a lot of interesting things when you said hobby रखने का टाइम नहीं था. This I know first hand क्योंकि when I asked you तुम्हारी hobby क्या है, तुमने बोला drinking चाय, which doesn't count as a hobby. But you touched upon कि तुम्हें अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ना था जिससे you could support the family. जब से तुम स्कूल में थे तुम्हारी एक इच्छा थी तुम्हें IIT जाना है, to be amongst the best in the country, क्योंकि इस फैमिली में हम छोटी ख्वाहिशें तो रखते नहीं हैं. And you ended up studying engineering at IIT. So first question for you is, how was that experience? Is it as tough as what people say it is? सी उस समय के हिसाब से टफ नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मेरा स्टडी का एक प्रिंसिपल था और उसमें मुझे कभी कभी बाकी अपने फ्रेंड सर्कल से जब मैं बात करता था तो एक बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन मिलता था। सब लोग पूछते थे एग्ज़ाम की तैयारी कर ली, ये क्वेश्चन कर लिया, या इस तरह के तुमने प्रैक्टिस की है क्या। मैं कहता मुझे नहीं मालूम, मैंने तो पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लिया है, पढ़ लिया है। तो ये मेरा बचपन से ही एक फोकस रहा कि पूरा जो कोर्स वर्क है उसको पढ़ना और समझना, बजाय इसके कि गैस पेपर क्वेश्चंस और लॉट ऑफ प्रैक्टिस एग्जाम आते थे उस पर फोकस करने का। तो मेरा जो ये प्रिंसिपल था कि पूरा कोर्स मटेरियल को समझना है, आई थिंक उससे ही मैं सक्सेसफुल हुआ। हालांकि बाद में समझ में आया, क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिए उस समय रुड़की वॉज नॉट ए IIT, उसका सेपरेट एग्ज़ाम था, IIT का सेपरेट एग्ज़ाम था। IIT में मेरी रैंक बहुत अच्छी नहीं थी, तो उस समय ये ज़रूर लगा कि अगर प्रॉपर कोचिंग होती तो शायद रैंक भी अच्छी आ सकती थी। Interesting. So you said कि you were someone who used to prefer understanding the concepts and thinking critically rather than guessing कि question कौन से आएंगे पेपर में. Not everyone is granted this privilege, Faf, I must say. Most of us have to actually guess the questions. Okay. Both your sons did not go to an IIT. Both your sons have studied from universities in US and UK. You have, I'm sure, observed the benefits and the disadvantages of doing that. You have studied from IIT. You have seen its benefits. Looking back now, would you have preferred that both your sons would have studied from IIT? See, I need to be practical here. My childhood and my education was totally focused on academic. As you said, hobby, or there is a other aspect which I call it soft skills. There was no importance attached to the soft skills, which we realized only when we were in the job. So, other thing, once I started working and when I see backward, I laugh. Some days of my university कि एक एक ग्रेड के लिए हम आपस में कितना झगड़ा करते थे, कितनी मेहनत करते थे एक ग्रेड को बेटर करने के लिए हम लोग आपस में। लेकिन जब पास आउट होके जॉब में गए, आई हैव ऑब्जर्व कि जो हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के बोर्ड के टॉपर्स थे वो कभी भी यूनिवर्सिटी टॉपर नहीं बने। जो यूनिवर्सिटी टॉपर्स थे वो प्रॉब्ली बेस्ट जॉब उनको नहीं मिला। जिनको बेस्ट जॉब मिला कैंपस से वो प्रॉब्ली वर नॉट द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द लाइफ। सो व्हाट आई रियलाइज विद टाइम, देयर इज नो पॉइंट गिविंग टू मच ऑफ प्रेशर टू द चिल्ड्रन इन द बिगिनिंग एंड देन लेटर दे may not be able to compete and they are not going ahead in the real life. So let them go with their pace. So this was one change which I got developed. Second, both of you have spent almost your entire life outside India. So you are out from the Indian competitive system. So ये बहुत ही unfair होता तुम दोनों को ये एक्सपेक्ट करना है कि उस सिस्टम में जाके तुम उसको compete करो। सेकेंड पॉइंट, जो ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है
वो एकेडमिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसमें अदर स्किल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एक्सपोजर टू द वर्ल्ड इज इम्पॉर्टेंट. सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो ए मच बेटर कॉम्बिनेशन ऑफ द एजुकेशन विच बोथ ऑफ यू हैव गॉट. Spoken like a true pop. Instead of saying you were not smart enough for IIT, you said कि it was unfair for us to be part of the system. Real father talk here. Okay. Actually, IIT ka you were talking about कि whether you fit in the system or not. IIT का ये running joke है कि in other universities you select your department and you select your course. But in IIT the department and the course selects you. कि अगर तुम्हारा IIT में intake हो गया तो अब हम marine engineering करेंगे, even if that was not my first choice. अब हम मेटलर्जी करेंगे, एरोनॉटिक्स करेंगे, अब हमारा करियर उस पर बेस है क्योंकि IIT में इनटेक हो गया. लिंकिंग फ्रॉम दैट, वन अदर थिंग दैट इन्फ्लुएंस्ड योर लाइफ व्हाइल यू वर स्टडीइंग वाज यू डिसाइड टू गिव द सिविल सर्विसेज का एग्जाम वंस, डिड नॉट क्लियर इट अनफॉर्चुनेटली. डू यू स्टिल रिग्रेट इट? That is actually there is one or two regrets surrounding that part. When I passed out, my clear plan was to prepare for the civil service. So that means I should have gone for masters और civil service का preparation करना. लेकिन suddenly एक change हुआ. And just a small deviation, जब मैं pass out हुआ, I gave the exam for the Indian Air Force and I was selected as a commissioned officer. So that is at par with the civil services. But somehow I did not opt for that. Got selected and did not join. I took up a job which was not too much demanding on the time. And I thought this I can continue with the job and study for the civil services. While some of my friends, they took off from job or other studies and they devoted full time for the civil services. More than the civil service not trying remaining attempts, other regret which I have, many of my friends were telling, कि along with the civil service, prepare for the engineering service also. That's equally good. So at least you clear one of that. And I was so confident that I'll complete the clear the civil service. So I did not take that option. And then in the first attempt, because civil service has 3 layers, prelims, main and interview. I was hoping in the first attempt, at least I'll go up to the, I'll clear the mains. So only the interview part may be remaining, that I'll improve on the second and third attempt. But in the first attempt, when I did not clear the mains, somehow I got so demotivated, I decided not to continue, which is one regret which I have even today. I should have continued trying. And this is a just coincidence. Then government changed the limit also. Earlier there were only 3 attempts, then they made it 4. So that is one regret which I have, but it's now almost 35 years old story. I have a question based on that. पर उससे पहले मुझे तुम्हें एक कविता सुनाना चाहता हूँ हरिवंश राय बच्चन की. एंड कविता कुछ ऐसे जाती है. जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वो डूब गया तो डूब गया. अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है. जो बीत गई सो बात गई, जीवन में वो था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वो सूख गया तो सूख गया. मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वलरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है. जो बीत गई सो बात गई. तो इसके ऊपर क्वेश्चन ये है, लुकिंग बैक नाउ, do you think not clearing the civil services exam was in fact the biggest blessing of your life? And I say that because let's do a thought experiment. Because you're from IIT, I'm sure you love these things. Let's imagine the life you would have taken if you got into civil services. You would have been an IS officer, government की नौकरी. At that time, काफ़ी prestige था उस नौकरी में. अब, I don't know, your reviews might be different. Also, we have first-hand experience of what happens to people in those kind of jobs if you're not flexible to toe the line, if you are not ready to compromise on integrity, which people who know that you will never do. So that is another life. When you didn't clear it, you went for a corporate job, ended up moving to Oman, ended up moving to Dubai, got a house here as well. So looking back now, do you think that you actually got the better option, even though you didn't like it at that point?
वेरी डिफिकल्ट ये कहना है कि ये अच्छा है या वो अच्छा है. व्हाट यू आर सेइंग, वो इवन माय फादर यूज्ड टू से, सिविल सर्विस का जो चार्म है वो तभी तक है जब तक कि पॉलिटिकली अलाइंड हैं. एंड मैनी टाइम्स they are good parts also, but many times people have to compromise with their integrity, and sometimes it is a risk also to the life. But एक प्रेस्टीज एंड स्टेटस जो इंडिया में अटैच्ड है उसके साथ, वो समथिंग इज ऑफ वर्थ अचीविंग. यस, आई नो कि सिविल सर्विस में अपनी प्रॉब्लम्स हैं. हियर द लाइफ विच आई हैव लिव्ड is much more comfortable and straightforward life. This I agree. It's a very straightforward, no compromise ever, and day-to-day working is very good. So yes, both lives has their own charm. So very difficult to say which would have been better. I got it this, and probably I always keep saying in my life, destiny works much more stronger than the what I wish. So कई बार changes destiny करा देती है. Before we move to the big questions of destiny, one side note, 1984 में इंडिया में एंटी सिख राइट्स हुए थे, एंड उस समय तुमने दिल्ली से आगरा एक बस ली थी. उस दिन तुमने क्या देखा? बहुत ही अनफॉर्चुनेट डे था, और मैंने दिल्ली से आगरा बस नहीं ली थी. मैंने रुड़की दिल्ली आगरा, अपोजिट, आगरा दिल्ली रूट की ट्रैवल किया था. उस दिन मैं आगरा में था क्योंकि सिविल सर्विस के एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था मैं. तो 15-20 दिन का टाइम था, तो आगरा घर पे आ गया था. मैं तैयारी कर रहा था और एक हफ्ते बाद मुझको दिल्ली जाना था प्रॉब्ली एग्ज़ाम के लिए. लेकिन ये राइट्स हुए, वेरी अनफॉर्चुनेट. नो वन एक्सपेक्टेड कि इस तरह का भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया में जो चाइल्डहुड हमने देखी है और अभी भी देखते हैं कि किसी भी नेबरहुड में पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, दे लिव टुगेदर. कोई अंतर नहीं होता है. विलेजेस में वो दे आर पार्ट ऑफ वन फैमिली. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट पीपल बाय रिलीजन. दिस इज व्हाट वी हैव सीन इन द चाइल्डहुड, एंड this kind of incident was unfortunate and no one expected. Then, because civil service exam got postponed because of this, so I decided to go back to Roorkee, and that I was going via Delhi. It was a very, very unfortunate and unbelievable sights. In Delhi, I saw, like in front of police station, टेंट लगा करके पूरा जो सामान सिख फैमिलीज के घर से लूटा हुआ था, जिसको ले गए थे, वो रिकवर किया है. पुलिस स्टेशन के अंदर जगह नहीं है, उसके आगे खाली मैदान में टेंट लगा के हीप्स, लाइक इट्स ए बिग बिग माउंट्स बन गए थे. इस कदर से लूटा गया था. पूरी पूरी लाइन में आउट ऑफ 10 ऑलमोस्ट 9 शॉप्स वर कंप्लीटली बर्न. एंड ये सीन मैंने आगरा टू दिल्ली, दिल्ली टू रुड़की पूरे रास्ते में देखा. एंड ये भी देखो, उस समय में जिस घर में रहता था रुड़की में, द ओनर ऑफ द हाउस वाज ए सरदार. मतलब इट वाज ए सिख लेडी. उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, एंड उस घर में हम उनके साथ 2-3 साल रहे. वो बहुत प्यार से हमको रखा था. एंड इनफैक्ट वो आगरा भी कई बार बाद में आई. जब हमारे फादर की डेथ हुई थी तब भी वो आगरा मिलने आई थी. तो 1-to-1 रिलेशन वॉज लाइक दैट. हम ऐसे टाइम में भी सिख फैमिली के अंदर रह रहे थे, और वो आंटी उतने ही प्यार से हमको रख रही थी. बट येस, इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट, एंड ऐसा मैं सीन मैंने कभी दोबारा नहीं देखा. You said you were eyewitness to the emergency, which was a pivotal moment in Indian history. उस समय सेंटिमेंट क्या थी? मिक्स सेंटिमेंट्स थे. सम पीपल वर सेइंग कि करप्शन और उस पर कंट्रोल हुआ है. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते थे वो नॉर्मली टाइम पे नहीं होते थे, ऑफिस में भागते थे,
तो उनमें एक फियर आया था. इवन हमारे आगरा में कुछ डेवलपमेंच जो हुआ है, मेजर डेवलपमेंट, सेंट्रल जेल जो शहर के बीच में थी और मेन रोड थी, उसको पैचवर्क से ही वो रिपेयर करते थे. बट इमरजेंसी में जिस हिसाब से एक ड्रास्टिक चेंज हुआ, वो आज तक आगरा का माइलस्टोन है. सो यस, देयर वर लॉट ऑफ पीपल जो ये कहते थे कि इमरजेंसी में करप्शन कम हुआ है और काम ज़्यादा हुआ है. Interesting. This is an event, it really depends where you were at what place and time, because a lot of people have obviously suffered, but a lot of people also gained from it. So it's such a mixed event. Okay, so I took some digressions, but now I want to bring you back to the big questions you were talking about, destiny. 91, 92 में you were working in India. कोई इच्छा नहीं थी कि कभी आगरा छोड़ के जाना है या परिवार से दूर जाना है, but within a year you had moved to Oman. How did this happen? Destiny, it happened all of a sudden. Okay, I was initially posted long because I passed out from Roorkee, and somehow I developed a sort of liking and love to the campus. So when जब CMC में था तो बैक पोस्टिंग रुड़की यूनिवर्सिटी में मिल गई थी. वहाँ से फिर मुझे 89 में कानपुर ट्रांसफ़र कर दिया था. तो उस समय मुझे somehow from the beginning बड़े शहर से मुझे डर लगता था. दिल्ली, बॉम्बे ये नहीं पसंद आते थे. और दूसरा शायद ये भी था कि जो हम लोगों का उस समय की सैलरी लेवल्स थे या फाइनेंशियल स्थिति थी, उसमें ये क्लियर था कि दिल्ली एंड बॉम्बे में इट विल बी डिफ़िकल्ट लाइफ. Can I just ask you, what was the fear? डर किस बात का था? बड़े शहर का. हाँ. आई यूज्ड टू फील लॉस्ट. दूसरा, वहाँ पे हाउसिंग वॉज टू एक्सपेंसिव, अदर थिंग्स वर, तो वो दैट वॉज मच बियॉन्ड द मीन्स. जबकि मुझे घर थोड़ा सा, आई वॉन्ट ए लिटिल स्पेशियस हाउस, मिडिल ऑफ ग्रीनरी. सो वो शुरू से एक लाइकिंग थी कि मिडिल ऑफ ग्रीनरी, स्पेशियस. सो उस वजह से मैं बिग टाउन्स में नहीं जाना चाहता. तो मैं जोक में कहता था कि जब मुझे कोई कहता था अब CMC का नेक्स्ट ट्रांसफ़र दिल्ली होगा, तो मैं जोक में कहता था कि मैं दिल्ली नहीं आऊँगा, बाहर चला जाऊँगा. बट दिस वॉज नॉट प्लान. देयर वॉज ए कॉल सडनली फ्रॉम समवेयर दैट देयर इज ए रिक्वायरमेंट फ्रॉम Saudi. Company name was Jarezi Systems, which deals, they have taken a big contract on the HP systems. And मेरी जस्ट उसके एक साल पहले ही HP US में HP systems पर ट्रेनिंग हुई थी. तो इट वॉज मैचिंग. एंड अनफॉर्चुनेटली उस दिन अंबुज बीमार था और वो हॉस्पिटलाइज था. तो पहले तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया. Sorry, one sec. Ambuj is my elder brother, the not famous one, not as good looking. Continue. सो मैंने मोर और लेस मना कर दिया था, लेकिन मैंने ये बोल दिया था अच्छा 2 दिन बाद कॉल कर लेना. हॉस्पिटल में मॉम हॉस्पिटल में थी उस समय अंबुज के पास. जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा, व्हेन थिंग्स वर बिट ओके, तो मैंने मॉम को बोला ऐसे एक फ़ोन आया था, मैंने तो मना कर दिया है. तो मॉम ने कहा क्यों मना कर दिया, बात तो करो. तो मैंने कहा हाँ अभी तो मैंने ये कह दिया कि अभी तो बेटा हॉस्पिटल में, उसके बाद देखते हैं. तो मॉम ने सजेस्ट किया नहीं बात तो करना चाहिए. तो फिर हमने नेक्स्ट कॉल उसकी प्रॉपरली एंटरटेन की. एंड इट वाज काफ़ी कुछ ये था कि सपोर्ट मॉम का भी था, क्योंकि दूसरे कंट्री में जाना है, वो भी अननोन कंट्री है. इंडिया में दैट टाइम UK एंड US वाज मोर पॉपुलर देन द मिडिल ईस्ट. पीपल वर नोइंग अबाउट UK एंड USA, एंड वो ड्रीम कंट्रीज होते थे. मिडिल ईस्ट उस समय इतना इंडिया में पॉपुलर नहीं था, तो मालूम नहीं था, कुछ कंसर्न्स भी थे. बट फाइनली ये होना था, ये हुआ कि इंटरव्यू तो दे के आओ. तो फिर इंटरव्यू दिया जाके दिल्ली में. तो इंटरव्यू साल हो गया. एंड उस समय क्या था कि इंडियन सैलरीज वर क्वाइट लो, एंड व्हेन यू कंपेयर दैट सैलरीज वाज क्वाइट अट्रैक्टिव. तो फिर ये हुआ कि ज्वाइन करने में क्या जाता है, 2-3 साल के लिए कर सकते हैं. और उस समय जो मेरी मदर थी वो बिल्कुल भी फेवर नहीं कर रही थी, अनहैप्पी. तो उनको ये बोला कि हम केवल 3 साल के लिए जाएंगे एंड विल अर्न सम मनी और कम बैक.
तो वो डेस्टिनी थी। ये सब कहते हैं जो भी दुबई आते हैं। उससे मैं सऊदी पहुंच गया, मॉम बाद में ज्वाइन करनी थी। लेकिन इससे बड़ी डेस्टिनी जो है इसमें वो दूसरी है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मैं आज तक भूलता नहीं हूँ। जब मैं सीएमसी से रिजाइन कर दिया था और नेक्स्ट डे में सऊदी फ्लाई करने वाला था, तो ऑफिस से बाहर निकला मैं अपने, हमारा ऑफिस सेकंड या थर्ड फ्लोर पे था, तो मैं लिफ्ट की तरफ जा रहा था। लिफ्ट और हमारे ऑफिस के गेट का फासला इज नॉट इवन 5 सेकेंड। तो मैं देखता हूं कि लिफ्ट से निकलते हुए मेरा एक सीनियर कोलीग था एसके आहूजा, वो बाहर निकला। वो मुझे देखा, एकदम चीख कर बोला, लवानिया सुना तो सऊदी जा रहा है, सीएमसी छोड़ दी, 1 मिनट बात सुन मेरी। मैं रुका तो कहता है नीचे चल। तो हम दोनों फिर लिफ्ट में नीचे आए। नीचे एक चाय की छोटा सा कियोस्क टाइप होता है दिल्ली में, तो उस पर आके खड़े हुए। तो उसने कहा कि जब तक यू आर इन सीएमसी, मैं ऐसे नहीं बोल सकता था, लेकिन अब तुमने सीएमसी छोड़ दी है एंड यू आर लिविंग, अब मैं तुमको सजेस्ट कर रहा हूँ। देर वॉज वन ऑफ माई एक्स सीनियर कोलीग जिसके साथ मैंने सीएमसी में ज्वाइन किया था, तो ही वॉज माई मैनेजर, दैट अशोक इज इन ओमान एंड that company is much better. You don't go this place, you call Ashok and probably you go there. You will be much better with him. But मन में वो मुझको ये सब बता रहा था, मैं सुन नहीं रहा था क्योंकि नेक्स्ट डे मैं फ्लाई करने वाला हूँ। तो उसने मुझे, उस समय मोबाइल फ़ोन तो होते नहीं थे, कोई इलेक्ट्रॉनिक डायरी भी नहीं होती थी, तो उसने मुझे अशोक के कॉन्टैक्ट डिटेल अपनी डायरी में से निकाल के देने चाहे। मेरे पास पेपर भी नहीं था, उसके पास भी पेपर नहीं था। तो ज़मीन पे से हमने एक कागज़ का टुकड़ा उठाया, उस पर उसने अशोक का एड्रेस एंड फ़ोन नंबर मस्कट का लिख करके मुझे दिया और मैंने बड़ा ही अनइंटरेस्टिंगली उसको अपनी फ्रंट पॉकेट में रख लिया। तो उसके बाद मैं अपना आगरा आ गया और हम लोग सऊदी के लिए तैयारी हो गई। मैं सऊदी चला गया। मेरी पोस्टिंग सऊदी में जेद्दा में थी, जो एज़ पर जॉब ऑफ़र। लेकिन जब मैं जेद्दा पहुंचा तो उन्होंने 1 वीक के अंदर मुझको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया। उनका एक रिमोट प्लेस है खमीस एंड आभा, वहाँ एयरबेस है। एयरबेस का जो कंप्यूटर सिस्टम था उसकी मेंटेनेंस के लिए उसको मुझे ट्रांसफ़र कर दिया। वहाँ जाके जब मैं गया, एक ही कंप्यूटर सिस्टम था और वो मॉर्निंग में केवल गवर्नमेंट ऑफिस आवर्स में चलता था। उसमें रूटीन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। तो मेरे पास पूरे दिन में काम करने के लिए मुश्किल से 1 घंटे का भी काम नहीं था। एंड 2:30 या 3 पे वो ऑफिस क्लोज हो जाता था। 5 डे वीक थी। तो विद इन 1 मंथ आई रियलाइज कि अगर मैं यहाँ कंटिन्यू करूँगा तो मैं प्रोफेशनली बहुत पीछे चला जाऊँगा। जबकि हम सीएमसी में तो मैं तो कंप्यूटर्स और सपोर्ट इंजीनियर था, वहाँ तो हर 2 घंटे बाद एक नई प्रॉब्लम में उलझा रहता था। तो मुझे ये लगा कि ये प्रोफेशनल मिस्टेक हो गई, यहाँ मैं बहुत समय कंटिन्यू नहीं कर सकता। उस पॉइंट पे मुझे आहूजा एंड वो पेपर याद आया। फॉर्चुनेटली मैंने सामान पैक करते समय वो पेपर अपने फ्रंट पॉकेट से निकाल के, जो मेरा ब्रीफकेस था एक, उसकी पॉकेट में असॉर्टेड पेपर्स के साथ मैंने डाल दिया था। देन आई ओपन दैट, सर्च फॉर दैट पेपर एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट द पेपर एंड आई कॉल्ड। अशोक वॉज माई सीनियर कोलीग बिकॉज मैं उसके टीम का पार्ट था, तो उसने मुझे रिकग्नाइज किया एंड फ़ोन पे ये बोला कि अभी तो मेरे पास कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई वैकेंसी होगी मैं तुमको कॉल करूँगा। अगेन मेरी डेस्टिनी थी, विद इन 15-20 days वन ऑफ हिज वेरी सीनियर पर्सन, और यू कैन से हिज राइट हैंड, रिजाइन। सो देर वॉज ए वैकेंसी, देर वॉज ए कॉल फ्रॉम हिम एंड द ऑफर, his initial offer was much better than what I was getting there. So there was no even point of discussing. And then some of my ex-colleagues from CMC were already there. So it was becoming more familiar environment. So I decided to join that.
And that's the way we reached Muscat. And that is one of our golden periods which we have lived in Muscat for almost 12 to 13 years. I must mention, working a job where you get money for doing nothing and job finishes by 2:30 and you're living in a hill station. This is a dream job for a lot of people. But I think we started this interview with this question कि you like to take a lot of responsibility and pressure on yourself. इधर भी तुम्हारी IIT and you wasn't happy. A lot of people would have settled and been happy and comfortable all their life. But you decided to, no, I want to actually get a tougher job from there, which is only a thing that I think you will do. See, partly could be true, but I think as a human being, कोई भी पूरे दिन बिना काम के बैठना बड़ा मुश्किल है. और इसको मैं समराइज़ करूँगा. जब हमने CMC ज्वाइन किया था, हालांकि CMC बाद में ज्वाइन, या हो सकता है मेरी पर्सनैलिटी बिल्डअप तो पहले से ही है, लेकिन शुरू के इंडक्शन प्रोग्राम में हमारे जो GM थे नॉर्थ के, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी. कहा था कि हमारे कस्टमर इंजीनियर, क्योंकि उस समय बड़े वाले मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर्स होते थे, जिस समय कोई इंजीनियर किसी कंप्यूटर को फिक्स करता है, प्रॉब्लम को फिक्स करके और कंप्यूटर रीस्टार्ट होके काम करने लगता है, उस समय जो उसको खुशी मिलती है, उस खुशी को कोई और छीन नहीं सकता. वो उसकी एक इंटरनल हैप्पीनेस होती है. आई थिंक मेरे साथ भी वही है कि जब वो टास्क जब कंप्लीट होता है तो उसके कंप्लीट होने की जो खुशी होती है वो एक अलग ही एंजॉयमेंट होता है. तो अब हम स्वागत करेंगे एक खास मेहमान का, द ग्लू दैट होल्ड्स दिस फैमिली टुगेदर, माय मॉम. I must say, mom is the only person in the family who shows real human emotions. खुशी, दुख, प्यार पूरी फैमिली में सिर्फ मॉम ही दिखाती है. अगर किसी का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, दिवाली हो, 3 men in the house, 0 emotions. Probably, Mom, you should be laughing. You should be very disappointed with your performance. But it's only mom who balances it all out. So, mom, आपका स्वागत है. थैंक यू. पहला प्रश्न पूछिए. चलो, अगर मेरे पास एक टाइम ट्रैवल मशीन है जिससे हम समय में पीछे जा सकते हैं, घड़ी को पीछे चला सकते हैं, और हम सब 1960s के आगरा में वापस जा सकते हैं तुम्हारे बचपन में, तो वो कौन सी घटना है, वो कौन सी मेमोरी जिसको तुम एक और बार जीना चाहती हो? बचपन की यही खेल कूद की सारी मज़ेदार हैं घटनाएं. हम लोग इतना खेलते कूदते थे, सारे जो कॉलोनी के फ्रेंड्स थे, और स्कूल से आके अपना जैसे बैग पटका, खाना खाया, और फिर हमारी दुनिया दूसरी होती थी. मीन्स के खेल कूद. और फिर घर में ऐसे आते थे शाम को जब सनसेट होता था. हालांकि डांट भी पड़ जाती थी घर में कि इतनी देर से खेल रहे थे, मतलब मम्मी की ना, पर फिर भी दूसरे दिन भी वही चीज़ चलती थी, कोई परवाह नहीं थी इस बात की. बस जैसे ही किसी पड़ोस में फ्रेंड ने आवाज़ लगाई, बुलाया, चलो खेलते हैं. तो बचपन में सारे ही गेम खेले हैं हमने जो उस समय में चलते थे. एक बार होली में किसी की पड़ोस ने एक तुमने कहानी सुनाई थी. हाँ, क्या हुआ था? ऐसा भी बहुत किस्से होते थे. हम लोग का क्या, जो कॉलोनी थी आगरा में, नेहरू नगर कॉलोनी थी, वो बहुत अच्छी कॉलोनी मानी जाती थी. और वहाँ पे लाइन से 7 कोठी वो, और पीछे की 3-4 कोठी बिल्कुल फैमिली जैसे रहते थे. मोस्टली सब बनिए थे, सब अच्छे वो थे, वेल. तो सबकी एक साथ होली होती थी. ऐसा नहीं था कि अकेले अकेले होली बना रहे हैं. तो एक घर से जब शुरू करते थे, फिर वो दूसरे घर में जाता था, उनको कलेक्ट करता था, तीसरे घर में, तो ऐसे एक टोली बन जाती थी होली की. तो वो टोली करते करते हमें था कि पीछे वाली लाइन में जाना था उनके घर होली खेलने के लिए. तो बजाय उस पीछा पूरा क्रॉस करने के, हमने सोचा कि अपने घर से एक क्रॉस दीवार फांदनी होती है, वहीं से कूदना शुरू कर दिया सबने. यहीं से चलते हैं, शॉर्टकट लेते हैं. तो हम तो बहुत छोटे थे उस समय, होंगे 9th में, 8th 9th की बात होगी. हम भी सब, जब बड़े और भाई लोग कूद रहे थे, कजिन्स थे, जब वो कूद रहे थे, हम भी वहाँ से छलांगे लगाने लगे. तो उस कोठी में उन लोगों ने पूरी होली की तैयारी कर रखी थी कि ये लोग आएंगे तो हम लोग अच्छे से इनको रंगेंगे और गुब्बारे फेंकेंगे. तो उनकी पीछे के साइड में बकेट भरी रखी थी बलून से, कलर के बलून से. 2 बकेट अच्छे से भरी हुई रखी थी, और उनको पता ही नहीं था. वो इंतज़ार कर रहे थे हम फ्रंट के गेट से आएंगे, और हम लोगों ने देखा, अरे ये तो भरे गुब्बारे रखे हैं हमारे. तो देखते हैं ना जैसे चांदिया, वो बच्चों में तो खुशी हो जाती है. एक बैलून भी अगर हमें मिल जाता है तो उसमें इतनी खुशी मिलती है. तो ये देख के तो बच्चे पागल हो गए सारे. सबने उठाने शुरू कर दिए बैलून, हमने भी उठा लिए जिस जिसके हाथ में आया, और सब भागे फिर. वो सीन देखने लायक था. और जब हम आगे आए तो वो तो
हैरान हो गए, जिसके घर में हम गए थे कि वो पीछे क्या जाते सारे उनके गुब्बारे कलर तो हमारे ही हाथ में था। तो वो सीन हम लोग आज तक याद करते हैं कि वो होली बहुत मज़ेदार थी। और उस समय में क्या होता था, घर से तैयार होके निकलते थे होली खेलने के लिए अपने आप को जैसे ऑयल लगा के बालों में, और एक सिल्वर कलर का कलर होता था, अगर आप पहले वो बॉडी पे लगा लो तो उसके ऊपर कोई और कलर लगाओगे तो चढ़ेगा नहीं। तो इवन वो तक कर लेते थे, इतने शौक से बनाते थे। तुम्हारे बचपन का कौन सा वो खाना है जिसको तुम वापस खाना चाहती हो? मैं खाने की भी बहुत शौकीन थी, फूडी थी, मतलब मैं बहुत ही शौकीन थी हर चीज़ की। बस पढ़ाई को छोड़ के। बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग इंटरव्यू पहला आधा घंटे सिर्फ आईआईटी टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। बिल्कुल कंटेंट। और मुझे ड्रेसेस का बहुत शौक था, मतलब अच्छी ड्रेसेस पहनना है शुरू से, बचपन से शौक था। खाने की डिश खाने का में मुझे मीठे का बहुत, स्वीट्स बहुत पसंद, छोले भटूरे है, और डिशेस में तो यही समय पूड़ी वगैरह जो होती थी, और आगरा में भल्ले, आगरा की चाट बहुत पसंद थी। उसकी जैसी चाट तो खैर कहीं मिलती ही नहीं है, वो चाट अभी भी मिस करते हैं वहाँ की। और उस चक्कर ये था, हम लोग को खाने पीने का इसलिए भी शौक था कि मेरे पापा थे, उनको बहुत शौक था खाने का। तो ये होता था कि वो कुछ ना कुछ लेते हुए आते थे, बाहर से आ रहे हैं समोसे ले आए, भल्ले आ रहे हैं, या छोले भटूरे घर में ही आ रहे हैं। तो हो सकता है इसलिए भी हमें धीरे धीरे वो एक अपने आप ही डेवलप हो गया। सेम क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज वन मेमोरी, अगर हम समय में पीछे जा सकते हैं, व्हाट इज वन मेमोरी दैट यू वांट टू रीलिव, एंड वो कौन सा एक खाना है, कौन सी एक डिश है जो तुम्हें वापस खाने का मूड है अपने बचपन से? सी, अगर मुझे बचपन से ज़्यादा बिट ऑफ यंग एज पे मैं ज़रूर वापस जाना चाहूँगा। कि अगर ऑनेस्टली मैं आंसर दूं तो मैं वापस जाना चाहूँगा रुड़की वाला टाइम पे, कि रुड़की जैसी जगह, छोटी, मच मोर ग्रीन, नेचुरल, उस जगह पे मैं जाके रहना चाहूँगा। बचपन इट वाज नॉर्मल, एंड उस समय एक चीज़ ज़रूर थी, अगर खाने की बात करें, भिंडी की सब्जी, लेडी फिंगर, वो बहुत अच्छी लगती थी। एंड मैनी टाइम्स आई यूज्ड टू थिंक कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा एंड आई विल बी ग्रोन अप वर्किंग, एवरी डे मैं खाली भिंडी खरीद के लाया करूँ। Which you are doing, I must say. As your son, I must say, घर में से भिंडी आ रही है। एंड प्रॉब्ली वन मोर मेमोरी आई रिमेम्बर, आगरा में जहाँ हम लोगों का घर है, गांधीनगर, दैट्स ऑलमोस्ट वॉकिंग डिस्टेंस टू पालीवाल पार्क, विच इज़ वन ऑफ द बिग पार्क प्रॉब्ली इन द रीजन। तो जब भी गर्मी की छुट्टियाँ होती थी तो गर्मी की छुट्टी का हम इंतजार करते थे, क्योंकि उसमें हम फिर मॉर्निंग में अपने घर से वॉक करते हुए पालीवाल पार्क में जाते थे और वहाँ 2-3 घंटा टाइम बिताते थे। तो दैट इज़ अ वेरी मेमोरेबल डेज, एंड वो मैं अभी करता हूँ। जब कभी भी आगरा वापस जाता हूँ, आई मेक श्योर कि मैं पालीवाल पार्क मॉर्निंग वॉक पर जाऊँ। ओके, डिस्क्राइब इन ओनली वन सेंटेंस, सिर्फ एक सेंटेंस में बोलना, हाउ वुड योर पेरेंट्स डिस्क्राइब यू? हम, मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। मेरे पेरेंट्स तो दोनों, शायद पहले बोला भी होगा तुमको, वो मेरे लिए तो हमेशा ही बोलते हैं कि हमारी सबसे सीधी, हम में 4 बहनें हैं, हम लोग 4 बहनें हैं, और मैं 3rd नंबर की हूँ। और मेरी एक इमेज जो है घर में, वो सभी बहुत प्यार करते हैं फैमिली में, ऐसा नहीं सिर्फ पेरेंट्स ही, कज़िन्स भी, कज़िन सिस्टर्स जो है मेरी, और मेरी बुआ जियाँ, मतलब वो मुझे अभी भी बहुत लाइक करती हैं। इसलिए कि नेचर, शायद नेचर की वजह से कभी कभी घर में ऐसा, अब तुमने बोला एक सेंटेंस तो ये तो लंबा है, पूरी बुक लिख दी मॉम तुमने। हाँ, तो वो कहते थे कि नहीं, उनके लिए सबसे सीधी। हाँ, सेम क्वेश्चन। एक्चुअली अगर फादर से पूछते हैं या जनरली तो यही था कि होशियार बच्चा है, और मदर कहती थी सीधा बच्चा है। वो इसलिए क्योंकि मैं खाने में बिल्कुल भी नखरे वाला या चूजी नहीं था, मैं लगभग हर चीज़ खा लेता था। सरप्राइजिंगली सब सीधे आंसर ही आ रहे हैं, बट अब हमारे बारे में पूछेंगे तो सब शैतानी वाले आंसर हैं। वुड लव टू हैव आस्क्ड योर पेरेंट्स। ओके, बिग क्वेश्चन टाइम, तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई? हु वांट्स टू स्टार्ट? ओके, दैट इज अगेन गोज बैक टू द डेस्टिनी। हम दोनों की मुलाकात और शादी होना एक डेस्टिनी थी, जो कि मैंने शुरू से कहा है कि लाइफ में हम दोनों ही आगरा से, गांधीनगर और नेहरू नगर आर वॉकिंग डिस्टेंस। सरप्राइजिंगली हम मिले नहीं थे कभी पहले। माय फादर वाज वेरी कंजर्वेटिव, सो इट वाज ए अरेंज्ड मैरिज, जो कि उस समय की ट्रेडिशंस थी।
उस समय मतलब दैट वाज द ओनली वे ऑफ गेटिंग मैरिड. हमारे लिए सोच पाना डिफरेंट वे वाज नॉट देयर. सो इट वाज ऑल अरेंज्ड मैरिज. प्रॉब्ली मॉम का प्रपोजल 2-3 years बैक भी आया था. Okay. Though both the family in terms of status is much different, but still there were some common people. So वो proposal आया था, लेकिन उस समय वो outright consideration में भी नहीं आया था. And when my marriage was getting pursued actively, उस समय मैं कानपुर में था और every weekend मैं कानपुर से आगरा आता था. So जब मैं मॉर्निंग में आया तो देयर वाज like several photographs of prospect girls, and one photograph was in the rejected side. And Swipe right. so I asked my sister, and photo was very attractive. मैंने ये इधर क्यों है? तो एज आई सेड, मेरे फादर जो थे ना, वो बहुत ही कंजर्वेटिव थे. वो बहुत पुराने विचारों से चलते थे. तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनके यहाँ भाई नहीं है, ये अकेले, मतलब ओनली सिस्टर्स हैं, इसलिए मेरे फादर इंटरेस्टेड नहीं है. क्योंकि उस समय जो कंजर्वेटिव फैमिलीज थी वो थोड़ा सा दे वांटेड टू मैरी इन फैमिलीज वेयर विच इज मच बिगर, जैसे हमारी थी. ओके. So I didn't like this answer. So I immediately argued why these are the all old things, and this cannot be the reason for rejection. Can I just ask, was this one of your biggest or one of the first times you've actually stood against your father? Once was before when college admission की बात हो रही थी, and this might be your second biggest? No, college admission, but ultimately he prevailed. I wanted to go IIT Kanpur. So this was the biggest like defiance you against your father at that point? Probably no. When I said not in that tone, I simply asked, this should not be the reason. If there is कोई और reason है तो वो है, लेकिन but मेरा और father का argument probably continued for night and next day continued. And when morning it was concluded, yes, it will be considered, probably for me it was already done. So even though you haven't met, you No. have no idea, No. but on the principle, on the idea जो तुम debate कर रहे हो, उस पे you have probably got from my side it was all done, because this argument has almost continued from during day to the night until next day, and father has to accept it for consideration. So from my side it was done. And as I said, like it is very surprising because we are at walking distance. Both the houses are at walking distance only. And mom claims she has come to our house also, much when she was like in school. So, but I don't know. अच्छा, मॉम तुम्हारे लिए सवाल. अभी अभी तुमने कहा कि तुम्हें पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था. वैसे तुम्हारा शौक काफ़ी पेंटिंग, आर्ट, वेरी क्रिएटिव, सबसे क्रिएटिव फैमिली में मॉम. This painting is also made by my mom, and as all paintings in our house are, fashion, modeling, इन सब का तुम्हें शौक था. तुम्हारी शादी हुई IIT के इंजीनियर से. तुम्हें कैसा लगा उस समय? अच्छा लगा, क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग बिजनेस फैमिली से हैं, और जो मेरे पापा थे, फादर, वो सब हम 4 बहनों के लिए सर्विस में ही देख रहे थे, जो भी लड़के देख रहे थे. तो बड़ी सिस्टर की शादी हुई, वो मर्चेंट नेवी में थे, कैप्टन जीजा जी. सेकंड की हुई, वो भी IAS उसमें थे. अब 3rd नंबर मेरा था. तो मेरे लिए भी ऐसे ही लड़के देखे जा रहे थे, IPS, डॉक्टर और इंजीनियर, यही थे. तो पता था कि इनमें से ही किसी में होनी है. When was the first time you saw each other? And क्या फील किया? देखने आए थे, जब फैमिली के साथ देखने आए थे फर्स्ट टाइम, तभी देखा था. और उस समय तो कोई ऐसी फीलिंग इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो तो पहली बार देख रहे हैं. बात आगे जब बढ़ेगी, यस आती है, तब कुछ फीलिंग. फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था? इम्प्रेशन पापा का हाँ. ठीक लगे थे मुझे, सही लगे थे, अच्छे अच्छा. लगे थे. हाँ. Same question. आइलैंड जब देखने गए थे, मेरी सिस्टर शायद और भी फादर मदर सब लोग थे. और मैं शायद नॉर्मली
पीपल डू टॉक विद ईच अदर। उस समय ये था, मेरी कोई बात भी नहीं हुई मॉम से। आई वॉज जस्ट साइलेंट इन द ग्रुप। हमारे कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई। एंड प्रॉब्ली जब मम्मी को ये बाद में बताया तो मम्मी ने कहा ये अच्छा लगा। हाँ, हमारी उस समय बात भी नहीं हुई थी तो एक शब्द भी, क्योंकि फैमिली इधर भी पूरी फैमिली थी, पेरेंट्स थे, इन-लॉज थे, तो पापा ने मेरे से कोई एक शब्द बात नहीं की आपस में। तो ऐसा अच्छा ही लगा था कि कुछ पूछा नहीं। First impression you didn't mention. No, for me, that photo and the argument with my father is all done. Then, like for me, there was nothing to see or choose. Nothing to see. इतना फोटो से प्यार हो गया. You have been married now for 32 years this year. उसमें से 30 साल तुमने इंडिया के बाहर बिताए हैं, ऑलमोस्ट, राइट? अगले उस सवाल से पहले एक और कविता है इधर। तो कविता कुछ ऐसे है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, बीच में लटकते रहे, ना इंडिया को भुला सके ना विदेश को अपना सके, NRI बन के काम चलाते रहे, ना हिंदी को छोड़ सके ना अंग्रेजी को पकड़ सके, देसी एक्सेंट में गोरों को कंफ्यूज करते रहे, ना शॉर्ट्स पहन सके ना सलवार कमीज छोड़ सके, जीन्स पर कुर्ता पहनकर इतराते रहे, ना नाश्ते में डोनट खा सके ना खिचड़ी और कड़ी को भुला सके, पिज़्ज़ा पर मिर्च छिड़क कर मज़ा लेते रहे, ना गर्मी को भुला सके ना स्नो को अपना सके, खिड़की से सूरज को ब्यूटीफुल डे कहते रहे। अब आई बारी इंडिया जाने की, तो हाथ में मिनरल पानी की बोतल लेकर चलते रहे, लेकिन वहाँ पर ना भेलपूरी खा सके ना लस्सी पी सके, पेट के दर्द से तड़पते रहे, ना मच्छर को भगा सके ना खुजली को रोक सके, क्रीम से दर्दों को छुपाते रहे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, कम वक्त कहीं के नहीं रहे। तो सवाल ये आता है, क्या आज इंडिया तुम्हारे लिए घर है, या क्या गल्फ तुम्हारे लिए घर है, या कभी कभी लगता है कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, कहीं के नहीं रहे? नहीं, इसको मैं तो ये बोलूँगा, अब तो हमारे लिए दोनों ही घर हैं, क्योंकि वो हमारा बर्थ प्लेस है, इनिशियल लाइफ वहाँ बिताई है, लेकिन जितना टाइम हमने इंडिया में लगाया उतने ही साल हमने गल्फ में भी बिताए हैं। एंड गोल्डन पीरियड का हो, जो ग्रोइंग पीरियड है, अचीवमेंट वाला पीरियड है, वो सब गल्फ में हुआ। तो ये भी हमारा घर है, वो भी हमारा घर है। थोड़ा सा मैं ये बोलूँगा, जो कविता में इश्यूज रेस किए हैं तुमने, उसमें यह है कि गल्फ हमको ये लगा कि हम फिर भी मोर इंडियन रह सके। अगर यूरोप या वेस्टर्न वर्ल्ड में जाते तो शायद इंडिया से काफ़ी दूर हो जाते। और मे बी ये भी एक कारण था, ये अकेला कारण नहीं था, डेस्टिनी थी कि हम यही कंटिन्यू करते रहे। सो वी डोंट मिस मच ऑफ इंडिया, क्योंकि गल्फ में बहुत कुछ इंडिया का अवेलेबल होता है। तुम्हारा आंसर? हाँ, मुझे भी नहीं ऐसा कि लगता है कि इधर के भी नहीं रहे और उधर के भी नहीं रहे, ऐसा मुझे फील नहीं होता है। और मैं इंडिया को इतना मिस नहीं करती हूँ, मुझे यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों? यहाँ की लाइफ ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा पीसफुल है, और मुझे पीस बहुत पसंद है। क्या तुम्हें लगता है कि वापस इंडिया जाओगे? जा भी सकते हैं, अगर गए तो हम, ऐसा नहीं है, जाके वहाँ भी सेट हो सकते हैं। नॉट आउट ऑफ फोर्स, मतलब अपने, अगर तुम्हारे हाथ में ऑप्शन है। अगर हमारे हाथ में है, जब तक हमारा मन है, हम यहीं रहना पसंद करेंगे। योर आंसर। एंड यू? जहाँ मॉम रहेगी वहाँ मैं रहूँगा। You can see why the marriage is going 32 years and strong. So next big question, you have moved out of India 92 में वैसे, but I want to just take you 1 year back. जिस दिन तुम्हें पता चला कि you are going to be a mother, you are going to be a father, और जिस दिन तुम्हारे पहले बेटे का जन्म हुआ, उस दिन क्या फीलिंग थी? बहुत अच्छा फील हुआ। वो जो फीलिंग होती है उसको बता नहीं सकते हैं। एज ए मदर, वो फीलिंग मदर के लिए तो सबसे बड़ी, लाइफ की सबसे बड़ा खुशी होती है, तो वो बता ही नहीं जा सकती। वो तो It was happy, but it was not that way that people say, oh suddenly मेरे पास responsibility आ गई है, उस तरह की feeling, because I was already in that phase
कि और ये सब क्विक सक्सेशन में हो रहे थे उस समय के जो डेवलपमेंट्स थे, तो कभी कभी तो सोचने का भी टाइम नहीं मिलता था। एंड क्योंकि शादी हुई है, अम्मुज होने वाला है, वी वर ट्रैवलिंग बिटवीन कानपुर एंड आगरा, अदर इश्यूज, सो कभी कभी सोचने का भी टाइम नहीं मिलता था। एंड यस, जब ये मालूम पड़ा होना है, वी वर नोइंग, लेकिन एक्चुअल जो बॉर्न हुआ है वो 10 days अर्ली हुआ है। एंड इट इज अगेन ए सॉर्ट ऑफ डेस्टिनी, और समटाइम्स यू repay in something else way. That's very interesting spiritual part. Amuj जब 13th को हुआ, that was not expected date. It was at least 2 weeks away. Just before that, I was traveling from Kanpur to Roorkee, and someone suddenly, जब मैं जा रहा था, हमारे नेबर एक आई कि हमें मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है और हस्बैंड उनके नहीं है, प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। तो उनको मैं डॉक्टर के पास ले जाके फिर घर छोड़ के देन मैं ट्रैवल किया हूँ। उसी नाइट या सेम नाइट, बिकॉज आई वॉज सपोज टू बी विद हर, लेकिन मैं, क्योंकि वो 2 हफ्ते बाद की थी, नाना जी जो हैं वो रात को ज्योत्सना को लेके हॉस्पिटल लेके गए थे, अचानक हुआ था। ऐसा कौन सा पहला मोमेंट आया, अगर सब जल्दी जल्दी हो रहा है, तुम्हें प्रोसेस करने का टाइम नहीं मिला, कि दैट से अम्बुज घर आ गया, मे बी टॉयज खेल रहा है, इट कैन बी एज लेट एज दैट, या स्कूल गया, पहला मोमेंट कब ऐसा आया कि जब तुमने फुल्ली प्रोसेस किया कि नाउ वी आर पेरेंट्स, अब हम अपनी पूरी ज़िंदगी इन बच्चों के, तब तक मैं तो नहीं आया होऊंगा, इन बच्चों के लिए देंगे, ऐसा कोई स्पेसिफिक मोमेंट आया? जब हुआ था तभी से डिसाइड हो गया ना कि बच्चों के लिए ही है। मैं तो पूरा लाइफ जो भी टाइम है वो बच्चों को ही दिया। फिर तुम्हारी लाइफ में दूसरा बेटा आया, द बेटर वन। उस समय क्या फीलिंग थी, एंड हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट टाइम? मेरे लिए तो इतना कोई डिफरेंट नहीं था, क्योंकि जो चेंज फर्स्ट होता है, मतलब पहली बार है तो वो एकदम सब कुछ नया होता है, और सेकंड टाइम में आपको एक्सपीरियंस है कि भाई सेकंड चाइल्ड होना है। पर खुशी सेम थी, क्योंकि वही था कि सेकंड चाइल्ड आया तो एक अलग ही खुशी थी। सेम क्वेश्चन। सी, दोनों ही, मैं अमुज के टाइम में, इफ यू सी, देयर वर लॉट ऑफ मोमेंट व्हेन ही वाज लाइक he was born, and within no time I went to Saudi, came back, then they came to Oman. So like first year of Amuj I have not seen much. Okay, and changes happened. So by the time we were well settled in Muscat, Amuj was already 1.5 year. And then it was stable. So there were a lot of, I will not call it disturbance, but changes बड़े rapid हो रहे थे, तो इतना अमुज को फोकस के लिए भी वो नहीं था। और दूसरा, अमुज भी थोड़ा सा नॉटी था, उसको हैंडल करना मुश्किल। अंडरस्टेटमेंट आई वुड से, प्लीज कंटिन्यू। ओके, थोड़ा नहीं, बहुत थोड़ा। थैंक्स मॉम। एंड पॉप इज स्पीकिंग लाइक अ पॉप, बट मॉम नोस। व्हेन यू वर बोर्न, तो उस समय तक हम मस्कट आ चुके थे, और थोड़ा एक सेटलमेंट वाला फेज शुरू हो गया था। एटलीस्ट जो इनिशियल चेंजेस थे वो पूरे हो गए थे, एंड you were less naughty. Also an understatement. But घर में दोनों से मिलके अच्छा चहल पहल रहता था। So that was the family. तो मेरे को ये कोई इवोल्यूशन नहीं है कि अब ये करना है या अब ये नहीं करना है। That's natural progression. Of course, उस समय की जो हम लोगों की विजिबिलिटी थी, मॉम का उसी समय एक चीज बोल दिया था कि मुझे बच्चे दोनों को मास्टर्स डिग्री यूएस में करानी है। दिस इज व्हाट जब तुम बहुत छोटे थे, मैनिफेस्ट। हाँ, पता नहीं, वो मेरे बस मुझे अपने बच्चे दोनों यूएस में पढ़ाने हैं। एंड हो गया। उस समय भले इतने पैसे थे या नहीं थे, हाँ, बोल दिया तो बोल दिया। हो गया। और भी बोल दो थोड़ा, बच्चे मिलियन कुछ कमाएंगे अगर है ही तुम्हारे पास। ओके, तुमने बात छेड़ी है, तो व्हाट इज द नॉटीएस्ट थिंग your kids have done? What is one memory that comes to mind, both of you? अमुज तो plenty of naughty things. एक बार का मुझे याद है, वहाँ मस्कट में पहले वाले घर में, वादी कबीर वाले घर में थे, हमने किसी बात पे डांटा उसको,
इतना फुर्ती से वो गया फ्रिज में से, उसने कर्ड एक बाउल में रखा था, बड़ी बाउल, नॉट स्मॉल, इट वाज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रायता बना के रखा था कर्ड, उसको लेके आया एंड टू आवर सरप्राइज कि उसको लिफ्ट कैसे कर लिया, इट वाज हैवी फॉर हिम, और लिविंग रूम में लाके कारपेट के ऊपर पूरा पोर किया, एंड ऑल दिस ही डिड सो फास्ट before we could realize what he is doing. By the time he is finished the act. This is foreshadowing supreme intelligence. क्योंकि उसने किया भी कारपेट पे आके, so he knows किचन exactly. में नहीं, He knows exactly what will hurt you the most. And the whole- मतलब फ्रिज में निकाला, किचन में ही कर सकता हाँ, था, but नहीं लिविंग रूम में लाया, वहाँ Carpet. पूरा कारपेट है उस पे किया। तुम्हारी एक मेमोरी मेरे लिए हाँ, उसमें भी जैसे मैंने किसी बात पे उसको बोला या डांटा तो दौड़ के किचन में गया, एंड किचन में जो गैस होती है कुकिंग रेंज, उसके सारे नॉब उसने फटाफट चारों खोल दिए, उसमें से एकदम गैस की ऐसे आवाज आने लगा। तो मतलब ऐसे डेंजरस, तो उस पर पूरा ध्यान रखना पड़ता था कि अगर वो शांत है या क्या कर रहा है, अलर्ट रहना पड़ता था, कहते हैं ना 24/7 अलर्ट। देखा, मैंने से पूछा नॉटीएस्ट थिंग योर किड्स हैव डन, बट ओनली अम्बुज स्टोरीज हैव कम आउट। क्योंकि तुम्हारी कोई भी नोटी वाली ऐसी स्टोरी नहीं है कि कुछ डांटना पड़ा हो या Of गलत course किया not. हो, बचपन में नहीं किया ऐसा कुछ भी। सो जब तुम्हारे बच्चे छोटे बच्चे थे, खूब शरारत करते थे, कभी कभी गलत काम करते थे, वक्त बर्बाद करते थे, गेम्स खेलते रहते थे, हाउ टफ वॉज इट, हाउ फ्रस्ट्रेटिंग वॉज इट टू वॉच? कभी तुम्हें ऐसी फीलिंग आई कि पता नहीं आगे जाके क्या होगा, ये लोग अच्छे लोग बनेंगे या नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जब हाँ खेल रहे हैं ज़्यादा, वो कि लगता है स्कूल का होमवर्क है या स्कूल की जो पढ़ाई है वो टाइम पर अपनी पूरी कर लें, तो मैं काफ़ी मतलब स्ट्रिक्ट थी बच्चों के संग जब छोटे थे इस चीज़ के लिए। तो एक डिसिप्लिन बनाया हुआ था मैंने कि स्कूल से आएंगे, खाना देना है, खाने के बाद उन्हें रेस्ट कराना है, और उसके बाद एक टाइम था कि 3 या 4 बजे उनको उठा के और उनका होमवर्क स्कूल का कराना है। तो वो एक रूटीन बनाया हुआ था, तो वो करा, मतलब ये लगता था कि कल के लिए जब स्कूल जाएंगे तो होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, रात को बैग लगाना है और बैग लगा के सोना है, उसके बाद खेल सकते हो शाम के टाइम, पर ऐसा नहीं कि होमवर्क पड़ा हुआ है और खेलने चले गए, ऐसा नहीं होने दिया है। मुझे ये लगता था पढ़ाई में अच्छे हुए, दोनों ही अच्छे थे पढ़ने में, ऐसा नहीं है, अब बड़ा भी छोटा दोनों पढ़ने में अच्छे थे, तो मुझे उस तरफ से ऐसा नहीं लगता था कि वीक हैं तो ज़्यादा ध्यान, तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता था आगे कि आगे क्या होगा या ऐसा सोच के, कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई, कभी नहीं आई। सेम क्वेश्चन। I think answer same है, it was things were going reasonable. कभी ऐसा लगा नहीं कि बच्चे आउट ऑफ लिमिट जा रहे हैं या दे आर शोइंग एनी कंसर्न। आई थिंक लाइफ वाज वेरी बैलेंस्ड, कि जहाँ मॉम का कंट्रोल होना चाहिए था वहाँ था, और जहाँ सॉफ्ट होना चाहिए था मॉम को वहाँ सॉफ्ट थी। दोज चेक पॉइंट्स कुड बी डिबेटेड, कुड बी लिटिल मोर लूज, मोर टाइट, लेकिन इतना कोई सीरियस कंसर्न कभी लगा नहीं। Let's thank God you were blessed with perfect kids. I must say. Probably, yes. Yes, yes. No. Okay. चलो, बच्चे तो परफेक्ट थे। अब मॉम, तुम्हारा क्वेश्चन, अपने आप को कितने मार्क्स दोगी एज अ मदर, एंड व्हाई? एंड व्हाई, क्यों दोगी? बच्चे बता सकते हैं कि उनके लिए मैं कैसी मदर थी। भाई मैं तो अपनी तरफ से बच्चों को जो दे सकती थी, मैं तो हाउस वाइफ थी, मैंने कभी जॉब नहीं किया, मैं घर में ही थी, तो मेरा पूरा टाइम बच्चों के साथ ही बीता, है ना। और मैं जो उनके लिए बेस्ट कर सकती थी, अपना सब कुछ छोड़ के, मतलब मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि बच्चों छोटे थे तो घर में छोड़ के, या इतने बड़े भी हो गए 7th 8th क्लास में, तो भी मैं छोड़ के जाके कुछ पार्टी में जाऊँ या किटी पार्टी। मुझे ये लगता था बच्चे अगर स्कूल से घर आए हैं तो मुझे उनको टाइम देना है। तो मुझे ये लगता है कि मैंने जो बच्चों के उनको दिया वो 100% ही दिया अपनी तरफ से। तो मार्क्स 10 out of 10? बिल्कुल बिल्कुल। सेम क्वेश्चन, हाउ वुड यू रेट योरसेल्फ एज अ फादर? I feel this can't be rated, because every father, every mother, like in my opinion, will try to do best for their children. Of course. यस। And with the best of their abilities, many of them, or many of the parents will even overstretch यस। themselves. So that's a natural.
So you can't give the marks, and always we could do better, we could do more. So it's very difficult to give any marks. या पेरेंट्स तो यही कोशिश करते हैं कि बेस्ट करें हर You've पेरेंट्स given a very diplomatic answer. I'm looking for an exact number. Do you think you are more of a natural father towards grown-up sons जिनको रियल एस्टेट की बात आती है या टेक्नोलॉजी की बात करनी आती है, इंजीनियरिंग की बात करनी आती है? Do you think you are naturally a much better friend as a father rather than father to two kids who are just playing toys, जो छोटे हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं? What do you think comes more naturally to you? See, probably मेरी पर्सनैलिटी में एक स्प्लिट है, बिकॉज वो बचपन में बहुत ज़्यादा मतलब हॉबी खेलना नहीं था, तो प्रॉब्ली आई एम नॉट प्लेड मच विद यू. लेकिन एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पार्ट है, ऑलवेज माई आई वॉज ऑन बोथ ऑफ यू कि सो लॉन्ग यू आर विद इन a wider limit. I call it a wider limit. One is a very short, other I'm fine. My eye is on the, like, if you are in something danger, and that my eye is always there. But the fun part probably I'm missing because I'm also not much spending on that part. Was it a conscious decision? Was it tough? या क्या तुमने सोचा था कि how your parents were to you? Did you make a decision to be exactly like that? You had to be completely different. Was it tough to be different parents from how your parents were to you? See, for me, in some places, very conscious to be different. Reason being, your grandfather was very strict. You can call them sometimes like with respect. Some qualities will be like a dictator. Disciplinarian. He was Very- a headmaster of a school after all. Yeah. So he was very strict rule and all those things. But I have a very soft corner also, because when I say every father tries to do best, but probably he even overstressed himself. Beyond his capacity and capability, he overstressed. But he was very strict, and he wanted to control everything about the children. So probably that part I made it conscious that that should not be the case. Everyone should have their own freedom. And then so long you are not doing any, what I say, something which is out of limits act, then it is fine. Same question, mom. सेम मेरा भी यही आंसर है कि मेरे पापा भी उस समय में शायद होते भी थे. पेरेंट्स जो है थोड़े स्ट्रिक्ट रहते थे हर चीज़ के लिए, पर हमें ये लगता ही नहीं, बच्चों को क्या है, अपना एक अलग लाइफ है उनकी, उनको फ्रीडम देनी चाहिए, उनको भी सीखने का मौका देना चाहिए, और गलती करने से ही सीखेंगे, कुछ गलत करेंगे तो सीखेंगे. Do you think moving outside India, being an immigrant, it's a very tough thing to do? And making a new home in a different country, जो तुम्हारे लिए काफ़ी foreign है, very tough to do. Do you think that is often a challenge when you're raising two kids as well? Did it ever be a challenge for you? या बहुत डिफ़िकल्ट था वो मेरे लिए, क्योंकि कहाँ तो हम इंडिया में, जैसे आगरा में एक छोटे शहर में रहते थे, और ज़्यादा इतना इंडिया में भी बहुत ज़्यादा नहीं कहीं घूमने जाते थे, तो एकदम से बाहर आना, अब्रॉड आना, और अकेले मैनेज करना बच्चों के साथ, तो बहुत डिफ़िकल्ट था वो वाला टाइम. और उस समय ऐसा भी नहीं था कि कोई फैमिली मेम्बर है या कोई, मतलब फ्रेंड्स जो होते थे वही एक फैमिली बन जाते थे, कुछ भी ज़रूरत है उस समय, तो बहुत मुश्किल तो होती थी. Anything to add? No, I think in some part it was better, because in India, that time the condition of the job and financial was a bit of struggle to maintain a minimum status, which got eased out while coming. So it's not that it was full of challenges. Coming out helped releasing a lot of financial pressure. Does not mean that I have to give money to someone, but at least the money was much easily available.
So I've asked you to give marks to yourself. It is only fair कि सवाल पलटा जाए. तो अपने दोनों बेटों को कितने मार्क्स दोगे individually? Have we been good sons up to now? कितने में से? 10? तो 10 out of 10. Wow, spoken like true parents. What do you think, Mom? Have we been good sons up to now? अरे जो तुम हो मेरे लिए वो बेस्ट हो. मैं और कुछ इससे ज़्यादा की उम्मीद ही नहीं करती हूँ कि ऐसे होते. जो हो वो मेरे बहुत अच्छे हो और ऐसे ही बने रहो. Same question. आई थिंक आंसर इज सेम एंड उसके रीजन है 2-3. एक तो ये है कि देयर इज नथिंग टू कंप्लेन. सो जब कंप्लेन नहीं है, बोथ ऑफ यू हैव स्टडीड, बोथ ऑफ यू हैव वेल सेटल्ड, एंड एक ने मैरिज कर लिए, एक ने अभी नहीं किए. ये कट हो जाएगा. नहीं ये भी है. अच्छा. So that will happen with time. So there is nothing to complain. And probably life also has taught me कि life change होती रहती है. Success का कोई absolute meaning नहीं है. Position का, power का, money का कोई absolute वो नहीं है. With life, with the circumstances, it changes in different stages. So I can't say कि ये achievement हो तब ऐसे होना चाहिए. Both of you have got the, in my opinion, reasonably good education, which gives you enough tools and wings to do what you want to do and fly as much as you can. So there's nothing to complain. Second probably comes again with the same answer, because my father, he was probably too possessive, and then he put up the expectation that possessive comes, and sometimes that brings the pressure. So I think we are happy or whatever the way it is. Full marks once again for both sons. Okay. How do you think तुम्हारे दोनों बेटों के बीच की रिलेशनशिप कैसी है? As brothers, watching as parents, हम दोनों के बीच संबंध कैसे है? हाँ. दोनों के बीच में अभी तो दोनों दूर दूर हैं, लेकिन उसका दोनों बच्चों के बीच में नेचर अलग अलग है. दोनों का नेचर अलग है. वो ज़्यादातर होता है, सेम तो कोई भी नहीं होता. तो उसका नेचर थोड़ा कम बात करने का है. तो इसलिए रिलेशन ऐसे हैं कि है, वो भी पूरा ध्यान रखता है, ऑब्जर्व करता है कि छोटा यंगर ब्रदर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ऑब्जर्व सब करता है. और जहाँ उसको बोलना है उतना ही बात करता है. तो रिलेशन वाइज अच्छे हैं दोनों के रिलेशन. Same question. Same answer. You have to start giving different answers. One, I'll ask you first then. How do you think we are as brothers? I think you can be little more interactive. Why do you think that is? Why do you think we are not interactive? This is what I see. No, why? What is one possible reason that we are not that interactive? One, mom has answered, both the natures are different. And second could be the distance. जो कि आजकल के टेक्नोलॉजी के टाइम में इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. सो डेफिनेटली दोनों की नेचर अलग अलग है और डिस्टेंस भी हो गई है. सो दैट कुड बी द रीजन, बट माय फीलिंग इज इट कुड बी लिटिल मोर. Feedback taken. I'm not sure if he's watching. I'm actually certain he's not watching. Okay. How tough is it to spend 20 plus years of your life for your children and then to watch them grow up and then leave the house permanently? वेरी टफ. Mom, ये tough question है. अर्नब गोस्वामी तुमने सोचा tough है, ये ज़्यादा tough है. हाँ, मुश्किल तो होता है, पर वही है आगे का ये सोच के कि भाई बच्चों का फ्यूचर है और उनकी लाइफ आगे अच्छी बनेगी, तो उसके लिए आप फिर तैयार करते हो, अपने आप को रेडी करते हो. अच्छा. इजी था तुम्हारे लिए? इजी तो नहीं था, कहते तो रही टफ है ना, टफ तो है ही, पर फिर इसके आगे कोई और ऑप्शन नहीं है. तो आपको उसके लिए रेडी करना पड़ता है अपने आप को कि ठीक है भाई, अच्छे के लिए जा रहे हैं, आगे अच्छा होगा. तो हम खुश हैं. See, it is tough, and हम लोग तो उसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं. It was just we were lucky you came back from UK. Otherwise, though, we were already in that mode when we were alone. And probably for me, एक learning जो थी वो पेरेंट्स से आ रही थी, क्योंकि हम भी अपने पेरेंट्स को छोड़ के जब बाहर आए थे
एंड स्पेशली मदर बहुत मिस करती थी। और हम तो मतलब ब्रदर सिस्टर सब हैं, तो ऐसा नहीं था कि उनके पास कोई भी नहीं है। एंड स्टिल उनके लिए इतना टफ नहीं था, फिर भी इट was tough for them. For us, it would have been even more tougher because there will not be anyone. But probably we are prepared for that. We also came out from our parents and we have seen how bad they felt at times. So we were aware and then we were preparing ourselves that we'll have to face this day one day. ग्रेट आंसर्स। आखिरी 2 सवाल, पर उससे पहले एक शेर अर्ज किया जाए मॉम, कि जहाँ सूरज की किरण हो, मॉम वाह वाह बोलते वाह हैं, वाह, वही बोल। जहाँ सूर्य की किरण हो वही प्रकाश होता है। वाह वाह वाह। थैंक यू मॉम, थैंक यू। और जहाँ प्रेम की भाषा हो वही परिवार होता है। बस खत्म क्या हो बात। गया। तालियां। अच्छा, थैंक यू, दिस इज फर्स्ट बट ओके। ओके, आखिरी 2 सवाल। तुम्हारी जिंदगी का, एंड आई वांट स्पेसिफिक आंसर दिस टाइम, तुम्हारी जिंदगी का सबसे खुशी वाला मौका कौन सा था? एक मेमोरी दैट कम्स टू माइंड। भाई बच्चे हुए, वो मेरे लिए बहुत खुशी का टाइम था। एक ही मोमेंट अगर बताना है तो तुम्हें बोला बच्चे हुए, पर दोनों तो अलग अलग टाइम पे हो। हाँ, पर बच्चे होना ही एक मतलब एक मोमेंट मान लो, वो दोनों टाइम जो हैं वो बहुत खुशी का टाइम था। और स्पेसिफिक मोमेंट फॉर यू, हैप्पीएस्ट मेमोरी ऑफ योर लाइफ। There cannot be one because Let's it's a just hear long one. run. Let's not put it the happiest. A happy memory of your life. Probably as childhood when I heard the news that I got selection in IITs and all that. Probably this was a distinctive, something which you have been wishing for long. And अगर IIT में भी मिलने से तुम खुश नहीं होते तो there's no help for you. How did you celebrate? I don't think there was any celebration. The happiest moment of your life, no celebration. Okay. Last question. अपने दोनों बेटों के लिए तुम्हारे पास क्या सलाह है, क्या एडवाइस है that you want them to remember all their lives? I think from our side, they already know me. So stay on the right path. You have got the proper education which will enable you to do whatever you want to do. So now you have all the time, platform to realize your dreams and grow in all aspects of life. Does not mean career only, your career, social, family, so that you attain the happiness which you deserve and you dream. सेम मेरे लिए और क्या, यही है कि भाई एक बैलेंस बना के लाइफ को आगे चलो। उसमें यह है कि भाई कैरियर भी है, जॉब भी है, आपको फैमिली भी देखनी है, आगे फैमिली बढ़ेगी तो बच्चे हैं, मतलब हर तरफ आप बैलेंस बना के आपको चलना है और ग्रो करो। लाइफ अच्छी, जो भी पसंद है वो चीज़ें करो। Fantastic advice from the two people who always given great advice in life. Mom and Pop, thank you so much for this interview and for giving birth to me. Yeah, that's it. Thank you for your time. Floor is yours. Any final words? So We are also proud of you. नहीं मॉम, ये तो लग रहा है कि फोर्स करके कोई ऐसे गन पकड़ के दोनों ही हमारे लिए ब्लेस हो, दोनों बच्चे। और देखो ये एक स्वीट होम बन गया। ये तो मैंने पूछा ही नहीं आज, क्या बनाया मॉम तुमने इधर? एक स्वीट होम बन गया। If there's further testament of the creativity in the house, this is final words from Pop. yeah, that's a, now I summarize it in different way. This interview puts us in the third stage of the life. When you are young child, you are recognized with your father name. Then second stage comes when you get recognized of your own. Then you final stage when you get recognized from your son. So this interview is the start of that phase when
we will get introduced to the world. To my thousands of fans. Friends. So happy entering to the third phase.